online platform of Shri Academy. I am Pratibha Singh, your English teacher. Today I am going to teach you third chapter, 2 stories about flying. The first one is, in this chapter we are going to study about 2 different stories. The first one is his first flight and second one is Black Aeroplane. His first flight is written by Liam O'Flaherty. So before starting the chapter, let's know something about Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty was a major Irish novelist, short story writer, and must be ranked as one of the foremost socialist writer in the first part of 20th century, writing about common people's experience and from their perspective. So Liam O'Flaherty जो थे वो इरिश के आयरलैंड के बहुत ही बड़े नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और उनको अर्ली 20th सेंचुरी के फर्स्ट मीन्स टू बी रैंक्ड एज फर्स्ट सोशलिस्ट राइटर. वो बहुत ही बड़े सोशलिस्ट राइटर थे, यानी कि वो सोशल इश्यूज़ पे लिखते थे. वो कॉमन मैन की एक्सपीरियंसेस को उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लिखते थे. He was born on 28 August 1896 in Inishmore, Ireland. Died on 7 September 1984 in Dublin, Ireland. He was married to Margaret Barrington. His nationality was British. He got educated in Rockwell College, Belvedere College, SJ University College, Dublin, and more. Means he was very much educated. He was great novelist. So now let's come to the story. 2 stories about flying. His first flight, Liam O'Flaherty. Before you read, since the earliest time human have dreamt of conquering the skies, here are 2 stories about flying. बहुत पुराने समय से इंसान की चाहत रही है कि वो आसमान पे अपनी जीत हासिल कर सकें. Here are 2 stories about flying. यहाँ पे 2 stories हैं flying से related है. Young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? एक छोटा सीगुल वो उड़ने से डरता है और वो कैसे अपने डर पे जीत पाता है. A pilot is lost in a storm. Does he arrive safe? और दूसरी स्टोरी है जिसमें एक पायलट है वो स्टॉर्म में खो जाता है. क्या वो सही सलामत वापस आ पाता है, और अगर आता है तो हु हेल्प्स हिम, उसकी कौन मदद करता है. तो पहले हम फर्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट. Let's go through the story. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away day before. छोटा सीगुल अपने लेज पे अकेला था. लेज क्या होता है? किनारा, सीमा. तो अपनी सीमा पे अकेला था. हिज 2 ब्रदर, उसके 2 भाई और उसकी छोटी बहन उसे छोड़ के एक दिन पहले ही उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने में डर लगता था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow अगर वो किसी तरह से छोटी सी दौड़ लगाता था और कोशिश करता था कि वो अपने पंखों को फैलाए और उड़े, तो वो डर जाता था और वो नहीं उड़ पाता था. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. और एक बड़ी सी नदी उस हिल टॉप के नीचे थी जो कि बहुत दूर तक बह रही थी और बहुत ही गहरी थी. मीन्स पहाड़ बहुत ही ऊंचा था तो उससे माइल्स डाउन नीचे वो नदी थी. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लिप्ड एट नाइट. उसको ऐसा लगता था कि उसके विंग्स उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. इन द सेंस उसको लगता था कि अगर वो कोशिश करेगा उड़ने की तो वो गिर जाएगा, और वो इस डर से अपना सर झुका लेता और अपने होल में जहाँ पे रात में वो सोता था वहाँ चला जाता. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और
जबकि उसके 2 भाई थे और एक छोटी बहन थी जिसके विंग्स उससे कहीं छोटे थे, वो उड़ जाती थी, उड़ती थी। और जो यंग सीगुल है वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था, नहीं उड़ पाता था। और जो मतलब प्लंज मीन्स होता है शॉर्ट स्विम इन वाटर, यानी गोता लगाना। और मतलब वो उस शॉर्ट स्विम को बहुत डेस्परेटली करना चाहता था, वो चाहता था कि वो उसको कर पाए, बट उसका डर जो है उसे नहीं करने देता था और वो नहीं कर पाता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मदर फादर उसके आसपास आते हैं। टर्न ओवर योर पेज। Calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके मदर फादर उसके पास आते हैं, उसको बहुत ही श्रिली में कर्कश आवाज़ में, अपब्रेडिंग हिम यानी उल्टा सीधा बोलना, डांटना, थ्रेटनिंग डराना, तो आकर के उसको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, बहुत कर्कश आवाज़ में बोलते हैं, उसको डराते हैं और बोलते हैं कि इसको कोई खाना नहीं देगा और ये यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएगा जब तक कि ये उड़ेगा नहीं। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं, मतलब जान बचाने के लिए वो हिल ही नहीं पाता है। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. और ये सारी बातें 24 hours पहले की थी, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. तो 24 आवर पहले उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली उसको छोड़ के जा चुकी थी, और वो उसने पूरे दिन एक दिन पहले उसने सारे टाइम अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए, उनके अपने ब्रदर सिस्टर को उड़ते हुए देखा। उसने देखा कि उसके मदर फादर जो हैं वो उसके बाकी ब्रदर और सिस्टर को उड़ने की आर्ट में परफेक्शन दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि हाउ टू स्किम द वेव, मीन्स जब वेव आती है तो उसके ऊपर कैसे लाइटली फ्लू करना है उसकी सरफेस के ऊपर, और कब डाइव करके फ़िश पकड़नी है। डाइव मतलब गोता लगाना, उसमें डूब के कैसे पकड़नी है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट, और उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग, एक टाइप ऑफ फ़िश होती है, ए सॉफ्ट फाइन सी फिश, उसको पकड़ते हुए और खूब लालच से चाव से खाते हुए देखा था उसे। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, पत्थर के ऊपर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल इज़ द साउंड मेड बाय द सीगुल्स। सो उसके पेरेंट्स जब वो उसका ओल्डर ब्रदर फ़िश पकड़ के लाया और खा रहा था, तो उस समय उसके मदर फादर उसको सर्कल बना करके आते हैं और बहुत ही प्राउड में अपने आवाज़ निकालने लगते हैं। एंड ऑल the morning the whole family had walked about on big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. उसकी कायरता पे टॉन्ट मारते हुए वो लोग उसे छोड़ के जा चुके थे सामने की बड़े से प्लेट्यू पे जो उस माउंटेन क्लिफ के अब जस्ट अपोजिट थी। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. जो लेज था वो साउथ को फेस कर रहा था, मीन्स साउथ डायरेक्शन के तरफ था, और द अपोजिट टू द साउथ था, इसलिए वो साउथ को फेस कर रहा था। और सूरज ढलने लगा था, आसमान में रोशनी फैली हुई थी। बिकॉज ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसने पिछले रात से ही कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसको हीट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। ही स्टॉप्ड स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज के किनारे पे, सीमा के किनारे पे आकर के वो रुक जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विग, और एक पैर पे खड़ा हो जाता है और दूसरा लेग जो है अपने विंग्स के अंदर छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, पहले वो अपनी एक आंख बंद करता है, फिर वो अपनी दूसरी आंख को भी बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। प्रिटेंडेड मीन्स किसी की तरह एक्ट करना, मतलब वो सोने की एक्टिंग करने लगा। और स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, ऐसा करने पर भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड शंक इन टू देयर नेक्स। हिज फादर वॉज preening
the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. मतलब कि जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे वो प्लेटो पे बैठे हुए थे, आपस में खेल रहे थे, और फादर अपने फेदर्स को, प्रीनिंग मीन्स होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर, मीन्स वो अपने फेदर्स को क्लीन करना, मीन्स आपने देखा होगा बर्ड्स को कि वो अपने लेग से अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं, उनको वेल मेंटेन करते हैं, तो वो वही चीज़ उसके फादर कर रहे थे, और सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. प्लेट्यू के ऊपर वो एक छोटा सा हम्प था. हम्प मीन्स थोड़ी उभरी हुई सी जगह थी जिसके ऊपर खड़े होकर के उसकी मदर उसे देख रही थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन. शी tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each other off their beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और उसको वहाँ पे अपनी चोंच को साफ़ कर रहे थे, खाना खा रहे थे, लेकिन उसके तरफ उसकी मदर के अलावा किसी और का ध्यान नहीं था. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. जब उसने ये सारा सिनेरियो देख लिया तो फिर वो अपनी आवाज़ निकालने लगा, रोने लगा और खाना मांगने लगा. गो क्लो आह शी स्क्रीम्ड बैक ड्रिसिवली. और उसको वापस से मतलब उसकी माँ के तरफ से बहुत ही ड्रिसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज़ स्टूपिड, मीन्स उसकी जब उसने खाना मांगा तो उसकी मदर जो है बहुत ही इस अंदाज में उसको जवाब देती है कि जैसे तुम स्टूपिड हो और तुम कुछ नहीं कर सकते. इस अंदाज में उसकी मदर रिप्लाई करती है. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. और वो फिर भी मांगते रहता है, आवाज़ देते रहता है, और कुछ देर बाद वो, और आफ्टर ए मिनट मीन्स 1 मिनट के बाद अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और उस एक अच्छी सी जॉयफुल स्क्रीम मीन्स खुशी वाली आवाज़ वो निकालता है. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. उसकी मदर ने एक फ़िश का टुकड़ा उठाया था और उसके तरफ उड़ के आ रही थी, तो वो बहुत ही जॉयफुली अपने मतलब साउंड निकालने लगा. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. और वो बहुत खुश हो जाता है, अपने फीट से रॉक पे टैप करने लगता है. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. और जैसे ही वो उसके पास से उड़ती है तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. और जब वो उसके एकदम अपोजिट में थी तो वो रुक गई वहाँ पे. हर विंग्स मोशनलेस, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. और कुछ पास आने के बाद वो रुक गई और वो फ़िश अपने बीक में रखी हुई थी. तो अब उसको लग रहा था कि ये मुझे फ़िश मिलने वाली है, तो फिर वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि मदर जो है सीगुल की वो वहाँ पे क्यों रुक गई. वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडेंड बाय हंगर, उसके बाद वो भूख से एकदम परेशान हो जाता है. He dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward into space. और वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है और वो जो उसका लेज था उससे बाहर जाके वो गिर जाता है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब वो जब गिर जाता है तो वो बहुत ही डर जाता है, उसका सीज मीन्स बंद हो जाना. और
हिज हार्ट स्टूड स्टिल, मतलब उसका हार्ट जो है वो रुक जाता है एकदम. ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन बस ऐसा जो है बस 1 मिनट के लिए होता है. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और नेक्स्ट मोमेंट वो क्या फील करता है कि उसके विंग्स जो हैं वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट विंग्स, उसके सामने वाले विंग्स के अगेंस्ट जो है वो विंड चल रही है. और देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पेट के नीचे और उसके विंग्स के अगेंस्ट ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो फील करता है कि अब उसके विंग्स जो हैं किस तरह से हवा को काट रहे हैं. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. डिजी मीन्स एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वन बैलेंस. बस वो थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था, मीन्स ही वॉज लूजिंग समवेयर, ही वॉज लूजिंग हिज बैलेंस. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस ही शोड अपवर्ड्स, और उसके बाद वो एक बार अपने विंग्स को फ्लैप करता है और वो ऊपर की तरफ आता है. फिर गा 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 गॉ क्लो आ, हिज मदर swooped past him. फिर हिज विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़, और उसकी मदर फिर उधर से निकल के जाती है और उसके विंग्स जो हैं बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे होते हैं. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो फिर अपने मदर को दूसरे आवाज़ में, मतलब दूसरी आवाज़ में जवाब देता है. हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कार्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. उसके बाद उसके मदर उसके पास फ्लाई कर रही थी, उसका ब्रदर, उसके सिस्टर्स यंग सीगुल के उसके पास फ्लाई कर रहे थे, बैंक कर रहे थे, शोर कर रहे थे, कार्वेट कर रहे थे और डाइव कर रहे थे. दैन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड not always been able to fly and commended himself to dive and shore and curve shrinking shrilly. उसके बाद वो कम्प्लीटली भूल गया कि वो कभी उड़ता, मतलब उसको उड़ने से डर था, वो डाइव नहीं कर पाता था, सोर नहीं, कर्व, मतलब वो कुछ कर नहीं पाता था. इस चीज़ को वो बिल्कुल भूल गया और वो अपनी फ़्लाइट को एंजॉय करने लगा. हिज पेरेंट्स, ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो अब नदी के बहुत ही पास था, एकदम सीधे उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और अपने नीचे वो बड़ी सी एक हरी नदी को देखता है. विथ लिटिल रिगेट्स मूविंग ओवर इट एंड टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड एम्यूजडली, और वो बहुत एम्यूज्ड फील करता है. एम्यूजमेंट मीन्स बहुत ही मीन्स स्पेशल फील करना, डिफरेंट फील करना. वो बहुत ही एम्यूजमेंट इज़ समथिंग लाइक टू बी फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड फीलिंग ऑफ good. So he started having the same feeling. Okay, thank you students. Now we will continue the rest of chapter in next video.